Kalyani family. I welcome Sri Jagannath Yatra Das, whose original name is Jagadish Sotlal Deshmukh, to our Vidyalaya. We heartily welcome him, and today he is here with us. So as Jyoti sir told about him, he is a 1993 batch alumni of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bhusawal, which is in Maharashtra, and it is in Jalgaon district. Jalgaon, might have heard the name of Jalgaon district. So the JV is situated in Jalgaon district of Maharashtra state. So let me tell you something about his academic career. He stood, first of all, he stood first in class 10. He passed out class 10 in the year 1998. And he stood first in his school. He stood second in the science stream in the year 2000 in the Nashik Division Board. Thereafter, he joined BTech in Mechanical Engineering from BTech Engineering College, Mumbai in the year 2004, and he completed his BTech Engineering course in Mechanical Engineering. After that, he was lecturer for 8 years in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University. After that, he became spiritual. You know the meaning spiritual? Spirituality. What we are seeing, what we are talking about is physical reality. And what we will talk about actually will be spiritual reality. So that we cannot see, we can only feel, we can only experience, but we cannot touch it. As I have already told you several times in the morning assembly also, that there are 2 types of reality world here. One is spiritual realm, other is physical realm. So we are living in physical realm, but there is something great in the spiritual realm. So spirituality should be in everyone's life, and he is there to talk about life skills and life values. We will discuss that. So far, he has been serving ISKCON Mumbai, you know, ISKCON, International Society for Christian Consciousness, for spreading the spiritual knowledge and guiding the students of schools and colleges in life, values and skills all over the country. And so far he has visited 96 Jawahar Navodaya Vidyalayas throughout the country. And what he has said, you will be happy to know that it is his opinion that it is so far, it is the best school that he has visited so far. So we have visited 4 indigenous regions: West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, 6 states. West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Kerala, and 3 union territories visited in the last 1 year. So actually, his total visits have been 1,000 plus schools and colleges, and in the last 10 years. And he has spread light to teach the life values and skills. So he is here today to spread the knowledge, the spiritual knowledge, and to guide you in life values and skills. So we again welcome Jagannath Yatra Das ji, and we are thankful and we are very happy to have him today with us. So let us be in the spiritual world, let us know the life skills and values from him. Sir, please. So I thank our dear Ghoshal sir for
introducing me and welcoming here at JNV Nadia of West Bengal. This is the first school of West Bengal I am beginning with my service. So I will happy to be with you today evening here. I wish you all good evening. So we'll begin with small prayer. You already had a prayer, but I also begin with a small prayer. You please join me. You can sitting. You just sit straight. सीधा बैठना है, क्योंकि तभी बुद्धि चलती है. झुक गए तो बुद्धि मंद हो जाती है. तो सीधा बैठना है, हाथ जोड़ना है और आंखें बंद करना है. हमें आंखें धोखा देती है. जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं या फिर मन भटकता है बहुत जगह. तो आंखें हमें धोखा देती हैं. इसलिए जब भी ध्यान की बात आती है या प्रेयर की बात आती है या जब भी स्टडी की बात आती है तो हमें स्टडी आत्मचिंतन, सेल्फ कंटेम्पलेशन, तो सेल्फ स्टडी, तो हमें आंखें बंद करना चाहिए बस 2 मिनट के लिए. ठीक है, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए छाती के पास और मैं जो कुछ बोलता हूँ उसको सुनिए. बाद में पीछे बोलिए, वो मैं सुनूंगा. ठीक है, जो हमने नवोदय से कुछ सीखा है वही अपने जीवन में हमने पालन किया है. साइलेंस प्लीज. बोलिए. आवाज आना चाहिए. ठीक है. ओम असतो मा सद्गमय. ओम असतो मा सद्गमय. बोलिए. ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय. ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सबको बोलना है. ठीक है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. See, unless you join with me, the discussion which I will do afterwards will not be effective because our consciousness will not be involved in that thing. So please chant with me so that our mind becomes peaceful and mind becomes without all the unnecessary thoughts, free from all the unnecessary negative thoughts. So please, only for 1 minute. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा See, we have to call out. If we want to call someone to you, you have to take his name so that your mother, your father, your friend comes near to you. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. One last time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Slowly open your eyes now and please pay attention. Keep your mind in your control. अपने मन को अपने साथ अपने वश में रखिए. पीछे आवाज़ आती है अच्छे से? लास्ट गर्ल्स, कैन यू लिसन मी? दिस साइड बॉयज, लास्ट बॉयज, वॉइस इज क्लियर? ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. You will have no tension. You will pay attention to the main subject of life. If you know the basics of life, your life will be happy, peaceful and satisfied. The purpose of all our education, all our living, all our jobs, all our hard work is only one purpose, ultimate. Daily, when you sleep, when you lie down on the bed, the only purpose is that you feel happy, satisfied with the whole day activities. जो आपने दिन भर किया, अनुभव किया, जो आपने काम किया, अभ्यास, स्टडी किया, स्वाध्याय किया, उससे आपको समाधान मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए. यही उद्देश्य है. नहीं तो बस पढ़ाई करना है, मार्क्स लाना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, बहुत भागदौड़ करना है. लेकिन यदि जीवन में हमें समाधान और आनंद नहीं होगा तो ये फेल्योर है, ये अपयश है. ये सब लोग समझते हैं क्योंकि जीवन ये सबसे अनमोल है. इस जगत में यदि हम सोचें कि सबसे मूल्यवान, सबसे अनमोल क्या चीज़ है तो अपना जीवन है. हम बोलते हैं टाइम इज़ मनी, लेकिन टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ. समय जो है अपना जीवन है, क्योंकि जीवन ये थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है. जिस व्यक्ति को ये ध्यान आता है, समझ में आता है कि अपना जीवन जो इतना सुंदर, अनमोल है, ये हमेशा के लिए नहीं है. मतलब बॉडी का जीवन, जो अपना शरीर का जीवन, जो है भौतिक जीवन. घोषाल सर ने जो बताया कि दो जगत है, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड. एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है. इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है. हम बुद्धि से समझते हैं अपनी बॉडी, अपना फैमिली, अपना गांव, अपना देश, अपना ये पूरा ब्रह्मांड जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जगत, सब कुछ जो बनता है उस समय रहता है, बाद में नाश होता है, टेम्पररी है. लेकिन हम जीना चाहते हैं हमेशा के लिए. हम जवान, युवा बने रहना चाहते हैं हमेशा के लिए. नोबडी वांट्स टू बी ओल्ड एनी टाइम. नोबडी वांट्स टू बी डिसीज. किसी को रोग नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए. लेकिन बॉडी है तो फिर बॉडी का अपना स्वभाव है. शरीर बदलते रहता है समय के साथ, शरीर बूढ़ा बनता है. इसलिए देखिए, हम बोलने में बोलते हैं इंग्लिश में, दिस बेबी इज़ ओनली 2 days ओल्ड.
2 दिन का बच्चा है हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, दिस बेबी इज 2 days ओल्ड बोलते हैं, यंग नहीं बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं। क्यों? विद टाइम वी बिकम ओल्ड, वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड। तो ये दुनिया का स्वभाव है, लेकिन हम जीना चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम समाधान चाहते हैं। क्यों? ये हमें सोचना चाहिए। पशु पंछी कीड़ा पेड़ पौधा सोच नहीं सकते कि हम कौन हैं, हम दुनिया में आए हैं तो कहाँ से आए हैं। एक दिन जाना भी होता है सबको, बहुत लोग गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, तो कहाँ जाते हैं कोई सोचता नहीं है। पशु पंछी सोच नहीं सकते, लेकिन मनुष्य जो है सोच सकता है। जैसे हम स्कूल में आए हैं तो हमें याद होता है कि हम अपने गांव से आए हैं। जब वैकेशन होती है तो हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है, इसलिए हमें जाते समय आनंद होता है, उत्साह होता है। कोई किसी को चिंता नहीं होती है मैं क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ और कब जाऊँ। हमें आनंद होता है जाने का, क्यों? पता है हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। बच्चों, वैसे ही जीवन का भी है, जिसको समझ में आ गया कि हम दुनिया में कुछ समय पहले आए हैं, हमेशा के लिए तो कोई नहीं होता है, एक दिन जाना भी चाहिए जहाँ से हम आए हैं। लेकिन जब पता ही नहीं है हम कहाँ से आए हैं तो हम जाने का भय लगता है, जाने का डर लगता है, चिंता लगती है, दुख लगता है। क्यों? पता नहीं है हम कहाँ से आए हैं, इसलिए भय होता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसे भय होता है। जैसे आपकी आँखों पे पट्टी बांध दी जाए, आई फोल्ड, आपकी आँखों पे पट्टी बांध दिया जाए, आपको दिखता नहीं है तो भय लगता है चलने में। वैसे अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान में है, उसे भय होता है। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, बुढ़ापे का भय या भविष्य का भय होता है, क्या छोटी मोटी चीज़ का भी भय होता है, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चों, हमने नवोदय स्कूल से पाया कि यहाँ पर अपना जीवन सबसे सुरक्षित है। समाज में बाहर जो भी कुछ चलता रहता है उससे नवोदय विद्यालय प्रभावित नहीं होता है। और बहुत ही सुरक्षित ये जगह होती है जहाँ पर हम बचे होते हैं, बचते हैं। किससे? दुष्प्रभाव से, दुष्प्रभाव बाहर का, समाज का। क्योंकि आज समाज में घोर भयानक स्थिति है, सब जगह झगड़ा चलता रहता है, सब जगह द्वेष भाव चलता रहता है, हिंसा चलती रहती है, और सब जगह नशा तमाशा, है ना, चलता रहता है। लेकिन नवोदय विद्यालय में शांति और आनंद का माहौल होता है। यहाँ का जो वातावरण होता है अपने जीवन को महान बनाने के लिए एक बड़ा अच्छा सुंदर अवसर होता है। हमने पाया था, जैसे हमने 5वीं के बाद एडमिशन लिया छठी में यहाँ पर, तो लगा नया जीवन हमें मिला है। जो मैंने किताब लिखा है IAS, जब हमने सपना देखा था IAS होने का नवोदय स्कूल से, हमने पूरा किया अपना जीवन सेवा, समाज की सेवा के लिए देकर। जब हमने देखा कि अपना फील्ड जो है, फील्ड अपना जो क्षेत्र है वो प्रशासकीय सेवा नहीं है, गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, अपना क्षेत्र जो है ज्ञान दान का है। क्योंकि समाज में जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण अज्ञान है। जब लोग नहीं जानते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद समाधान कहाँ है तो गलत चीज़ों के शिकार बनते हैं। आज समाज में जो समस्या है, नशा बड़ी समस्या है। केवल ऐसे नहीं कि गांव के अनपढ़ लोग नशा करते हैं, बीड़ी तंबाकू का या दारू का, शराब का। पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर इंजीनियर भी, सभी नहीं लेकिन बहुत लोग नशा के शिकार बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उनको ये सब कुछ पाकर, बनकर जीवन का समाधान, आनंद नहीं मिला है। कि जिस व्यक्ति को आनंद है, समाधान है जीवन का, वो नशा का सहारा नहीं लेता है। हमने नवोदय स्कूल के एडमिशन के बाद चाय नहीं पी है, क्योंकि तो वो समय हम लोगों को दूध देते थे नाश्ते में, 1 गिलास दूध, कि बच्चे के लिए चाय अच्छी नहीं होती, ये सोचकर हमेशा दूध देते थे, अच्छा 1 गिलास। तो हमने सोचा जब नवोदय में 5 साल जो हम थे चाय नहीं पी है, तो बाद में क्यों चाय की आदत लगानी है, और छूट गई तो छूट ही गया। हमने अभी आज कभी पिछले 30 साल में चाय नहीं पी है। और जो कुछ थोड़ा बहुत टीवी देखा होगा वो नवोदय में देखा होगा, संडे के दिन 1-2 घंटे, 1 घंटा कभी बच्चों ने वो डिमांड किया, सर टीवी दिखाइए। तो कभी मेस में, कभी उस समय तो बाहर ही बिठाते रहे थे टीवी लगाकर। तो हमने कुछ
जब देखा होगा तो नवोदय में देखा ये घंटा बस। नवोदय के बाद हमें टीवी भी देखा नहीं है, जो मतलब बॉलीवुड सिनेमा या तमाशा जो होता है हमने देखा ही नहीं। क्यों? थोड़ा जीवन का ज्ञान हमें नवोदय से हो गया था। यहाँ जो शिक्षक होते हैं वो समझते हैं कि बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान देना आवश्यक है, और देते हैं। हमें जो जीवन में अच्छा अनुभव आया या जो अच्छा समाधान हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षकों ने हमें जीवन भी सिखाया। और सबसे बड़ी बात होती है सुबह जल्दी उठना। आज समाज में लोग जो है जल्दी नहीं उठते हैं, बस अभी जॉब है, कंपनी का जाना है या कभी स्कूल में जाना है सुबह तभी उठते हैं। यदि छुट्टी होगी तो 8-9 बजे उठते हैं। ऐसा कभी बच्चे भी जब वेकेशन में जाते हैं गाँव, अपने एक महीना वेकेशन में ना दिवाली में बिताए घर पे, आपको पता है आप सुबह कितने बजे उठते थे? नवोदय में तो 5-6 बजे उठना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने गाँव जाते हैं वो आदत जो है हम तोड़ देते हैं। क्यों? वहाँ पे सोचते हैं हम अकेले हैं और फिर उठ के भी क्या करना है, और तो मैदान पे नहीं है दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए, वार्म अप के लिए, या होगा भी अकेला हमें प्रेरणा नहीं मिलता है, उत्साह नहीं आता है। यहाँ पर सबके साथ पूरा स्कूल जो है सुबह जल्दी उठकर मैदान पे दौड़ता है, फ्रेश होता है। तो ये जो माहौल है ये बहुत विशेष है। आज समाज में देखिए लोगों को, माता पिता को भी अपने बच्चों को समय देने के लिए समय नहीं होता है। माता पिता दोनों जॉब के लिए जाते हैं और जो बच्चे हैं माता पिता के बिना रहते हैं, मतलब उनको कोई संभालने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ के जो शिक्षक होते हैं 24 घंटा एक कैंपस में आपके सामने होते हैं, आपके आजू बाजू होते हैं। आपको जब भी कोई आवश्यकता होगी, इच्छा होगी, आप उनको मिल सकते हैं। हाँ, ये भी बात है कि आपका जो भाव है अच्छा होना चाहिए, आपका जो ये विचार अच्छा चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि बस केवल डिस्टर्ब करना है या बस टाइम पास करना है, ऐसा नहीं। यदि आपका भावना सही में प्रामाणिक होगा, अच्छा होगा, तो शिक्षक जो है आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। हमने अनुभव किया है कि हमने कितने शिक्षकों के घर पे नाश्ता खाया है, मतलब कुछ स्नैक्स खाए हैं। क्यों? ऐसा संबंध बने थे तो उस समय 30-25 साल पहले कि टीचर लोग जो है अपने स्वभाव के ऊपर है कि हम अपने शिक्षकों को कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर्श देते हैं, कितना उनकी बात सुनते हैं। इसके ऊपर शिक्षक भी वैसा आदान प्रदान करने वाले हैं। और जो बोलते हैं इन गिविंग वी रिसीव, इन गिविंग वैल्यू, इन गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स वी ऑल्सो रिसीव इक्वली रिस्पेक्ट एंड वैल्यू इन आवर लाइफ। तो बच्चों, लाइफ वैल्यू जो है हमें समझना चाहिए। लाइफ वैल्यू, जीवन का जो मूल्य है हमें समझना चाहिए। ये जीवन अनमोल है। हाँ, अनिश्चित है, पता नहीं कितना समय का है, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो भी है अनमोल है। चाणक्य पंडित जो थे महान नीतिज्ञ, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि मनुष्य जीवन का एक क्षण भी कोटि-कोटि सुवर्ण मुद्राओं से हम खरीद नहीं सकते। We cannot buy a single moment of human life with all the millions of gold coins. Millions of gold coins cannot buy a single moment of human life. इतना मूल्य क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, कोई व्यक्ति सोचे चाहे तो वो व्यक्ति इस एक क्षण में अनंत सुख, समाधान और सभी समस्या से मुक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? भगवान से जुड़कर। क्यों? हम अंतर सब, मतलब जो सत्य बात है कि हम सभी एक भगवान के अंश है। हम जो बोलते हैं रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। इसमें एकता का भाव है, हम सभी एक है। क्योंकि धरती जो है माता, हम जो बोलते हैं भूमाता, भारत माता या भूमि देवी भूमाता, धरती माता जो है सभी जीवों के लिए, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीवों के लिए एक है। यदि माता है तो पिता भी होता है, बिना पिता का कोई माता नहीं होता है। तो भगवान सबके पिता है।
हमें समझ, जो हम बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये जो प्रेयर होती हैं केवल बोलने के लिए नहीं है। मुझे एक आदत थी नवोदय स्कूल से कि या बचपन से, जब मैं कुछ पढ़ता था, कुछ सुनता था, कुछ देखता था, तो मैं सोचता था कि इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। क्योंकि बिना पालन के आपका ज्ञान जो होता है, जो जानकारी होती है, वो बोझ बनता है, बोझ। इट बिकम्स अ बर्डन विदाउट प्रैक्टिसिंग, फॉलोइंग द नॉलेज। जो बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, क्या बोलते हैं? नॉलेज इज़ पावर, बट व्हेन यू अप्लाई इट, जब उसका एप्लीकेशन किया जाए, ज्ञान के अनुसार हम जब कार्य करते हैं, तो विज्ञान बनता है, पावर, शक्ति बनता है। जैसे बोलते हैं कि भारत हमारा देश है, क्या बोलते हैं? भारत हमारा। यदि उसमें भावना नहीं होगी, भावना, उसमें अपना विचार नहीं होगा कि हम जो बोल रहे हैं और मानते हैं, तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। आगे कहते हैं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जब बोलते हैं, यदि भावना नहीं होगी, उसका एक्सेप्ट नहीं किया होगा, मानते नहीं हैं, तो फिर हमें किसी के प्रति अच्छे भावना, प्रेम नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा। हम सोचेंगे ये ऐसा है, वैसा है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब सोचेंगे अपने भाई बहन हैं, तो फिर देश के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा। केवल देश नहीं, जो देशवासी हैं, सबके प्रति। तो बच्चों, हमने नवोदय स्कूल से आदत लगाई थी कि जो थोड़ा समय मिला है जीवन में, हमें ज्ञान लेना है। ये गाइडलाइन कहाँ से मिला? नवोदय समिति से मिला था कि बच्चे को पूछते, सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए हमको पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा पाने के लिए, कुछ करने के लिए अच्छा मोटिवेशन दीजिए। तो हम उनको बोलते हैं कि बच्चों, हमने नवोदय स्कूल से ही जो मोटिवेशन लिया है, वो आज तक हम पालन करने का प्रयत्न किए हैं। तो क्या था मोटिवेशन? कम टू लर्न, शिक्षा के लिए आइए, सीखने के लिए आइए, अच्छा सीखने के लिए आइए, क्योंकि इसमें तनाव नहीं आएगा। जब सीखने की बात आती है, अच्छा सीखने की बात, तो मन को उसमें आनंद आता है, मन वहाँ पे लगता है। लेकिन जब ये सोचोगे कितने मार्क्स आएंगे, हमें कितनी कौन सी पोजीशन मिलेगी, व्हाट रैंक विल आई गेट, हाउ मच मार्क्स विल आई गेट, जब रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, अंकों के विषय में सोचते हैं, तो तनाव आता है। क्यों? वो अपने हाथ में नहीं होता है कि एग्ज़ाम तो देना अपने हाथ में है, पढ़ाई करना अपने हाथ में है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो अपने हाथ में नहीं होता। इसलिए चिंता होती है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, तो हमें चिंता होती है। लेकिन जो व्यक्ति को ये विचार होता है, रिजल्ट जो भी आए, हमें पढ़ना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें सीखना है, वो व्यक्ति वेकेशन में भी 2-3 घंटा पढ़ता है। ये नहीं सोचेगा तो बस मज़ा, खाओ पियो मज़ा करो ये नहीं। दिवाली वेकेशन 1 महीने का, तो हम उसमें भी किताब ले जाएंगे साथ में, कम से कम 2-3 किताब, और डेली 2 घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे। क्यों? पढ़ने की आदत जो है हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं कि बस अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। जो लोग केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, उनका ज्ञान टिकता नहीं है, साथ में नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई किया था केवल अंकों के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो समिति ने पहले ही बोल दिया है, कम टू लर्न, नॉट टू गिव एग्ज़ाम्स ओनली, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तनाव आता है। जैसे कोई अपने नवोदय स्कूल में कितनी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स होती है, स्पर्धाएँ होती है, म्यूज़िक के लिए होती हैं, स्पोर्ट्स में होती हैं, आर्ट्स में होती हैं, और एकेडमिक्स तो होती है। इतने सारे विविध, है ना, कार्यक्रम होते हैं, स्पर्धाएँ होती हैं, तो हमें उसमें भाग लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों भाग लेना है, नहीं, हमें सीखना है, कुछ तो नया अच्छा अनुभव लेना है। तो हमने किया था कि केवल अंकों के लिए नहीं, केवल मार्क्स के लिए नहीं, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है। तो बच्चों, हमने ये खुद अनुभव किया है कि जब हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो उसमें आनंद आता है, और फिर वो ज्ञान जो है हमेशा के लिए अपने साथ रहता है, हम भूलते नहीं हैं। सिस्टम ऐसा ही है, बनाए हैं कि जब मोटिवेशन होगा उसके हिसाब से सिस्टम काम करती है, और
पढ़ना भी क्यों है? केवल जॉब के लिए नहीं, काम धंधे के लिए नहीं, केवल वो तो करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने विचार दिया है, गो टू सर्व। ऐसा बोल सकते थे, कम टू लर्न, गो टू अर्न। पढ़ने के लिए आओ, कमाने के लिए जाओ, बिकम मनी मेकिंग मशीन, पढ़ो और कमाओ। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि केवल कागज़ का पैसा कमाने, केवल कागज़ का पैसा कमाने से किसी का जीवन महान या समाधानी बनने वाला नहीं है, जब तक सेवा की भावना नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, आई लव माई कंट्री, बोलते हैं ऐसा। जो प्लेज लेते प्लेज, उसमें बोलते हैं आई लव माई कंट्री। उसका मतलब क्या? बोलने की बात है केवल? नो, प्रेम का मतलब होता है सेवा। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के लिए हमेशा मेहनत लेते हैं, सेवा करते हैं। टीचर्स का प्रेम होता है बच्चों छात्रों के ऊपर, तो छात्रों के लिए मेहनत लेते हैं, प्रेम मतलब सेवा देते हैं। लव मीन्स टू सर्व। ध्यान दीजिए, सबको लगता है someone should love me, I should love someone, लव मीन्स टू सर्व। प्रेम मतलब सेवा। और सेवा का मतलब क्या है? सबको बीड़ी का पैकेट बांट देना। सर मैं बहुत दान धर्म किया, सबको सेवा किया, छुट्टी में गया था, पैसा मिला था, सबको गांव में बीड़ी का पैकेट बांट दिया, बड़ा सेवा किया। ऐसा नहीं। सेवा का मतलब होता है ऐसा कुछ कार्य जिससे जिसका सेवा किया है उसका कल्याण हो, उसका जीवन महान बने, उसका जीवन सुखी बने, वो उसको बोलते सेवा। और सबसे बड़ी सेवा बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी सेवा है कि ज्ञान बांटना। ज्ञान बांटना क्यों? तभी तो कहाँ है नवोदय के लोगों में प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ब्रह्म ज्ञान सबसे महान है। अब ब्रह्म ज्ञान क्या है? जीवन का ज्ञान है। जो मैंने कहा, आप फिजिक्स पढ़िए, उसका एक लिमिट है, केमिस्ट्री पढ़िए, उसका एक लिमिट है, मैथ्स पढ़िए, उसका एक लिमिट है। लेकिन जीवन को ही पढ़ना हो तो, जीवन को सीखना होगा तो उसमें लिमिट नहीं है। क्यों? हम जीना चाहते हैं हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं आत्मा के नाते, एज ए डिवाइन सोल, एज ए डिवाइन स्पिरिट सोल, दी पार्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के जो अंश है, उसके नाते हम सभी नित्य अविनाशी सच्चिदानंद आत्मा हैं। जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जीव। दो जीव होते हैं ना, सजीव निर्जीव। ये चीज़ क्या है? माइक साउंड सिस्टम क्या है? निर्जीव। डेस्क क्या है? निर्जीव। हम कौन है? सजीव। बॉडी इसकी भी है, बॉडी अपनी भी है। और बॉडी बनती है 5 तत्वों से बनती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्वों से बॉडी बनता है, सब कुछ 5 तत्वों से बनता है। लेकिन बॉडी के अंदर यदि जीव है तो उसे कहते हैं सजीव। यदि बॉडी में जीव नहीं है तो उसे कहते हैं निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग। और डेड बॉडी और लिविंग बॉडी, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या है? एक में जीव है, एक में जीव नहीं है। कैसे समझ में आएगा इसमें जीव है या नहीं? तो आत्मा का, जीव का प्रमुख लक्षण, मुख्य लक्षण, आंखों से जीव दिखता नहीं है। जैसे अपना मन हमने देखा नहीं है, किसी का मन हमने देखा नहीं है, लेकिन मन तो होता है। बुद्धि हमने किसी की देखी नहीं है, कितनी बुद्धि है, लेकिन हम बोलते हैं इसकी ज़्यादा बुद्धि है, ये बुद्धिमान है, इसकी कम बुद्धि है, ऐसे ही बोलते हैं। दिखते तो नहीं है। हाँ, हम कैसे समझते कम बुद्धि है? लक्षण से। और अहंकार, किसका अहंकार सच्चा है, किसका अहंकार अभिमान सच्चा अभिमान, मिथ्या अभिमान, हम लक्षण से समझते हैं, लक्षण। तो वैसे बच्चों, जो आत्मा है, जीव, जो दिखता नहीं, जो सभी कहा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आँखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया, कैसे अनुभव? लक्षणों से। तो बच्चों, यदि हम इतना समझ जाएं कि हम जो है हड्डी मांस के शरीर नहीं हैं, जो बदलते रहते हैं, हमेशा बदलता रहता है समय के साथ। आप देखिए आपका बचपन का फ़ोटो, पहला जन्मदिन का फ़ोटो माता पिता ने निकाला होगा बड़ा खुशी से,
निकला है कि नहीं? बर्थडे फोटो, फर्स्ट बर्थडे फोटो, नहीं। बचपन का फोटो देखिए, आज का फोटो देखिए। फोटो में आप देखेंगे बॉडी हैज चेंज इन साइज, शेप एंड फंक्शंस, बट द इंडिविजुअल इन द बॉडी हैज़ नॉट चेंज। तभी तो माँ बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, जन्म लिया तब अलग साइज़ था, अभी जो साइज़ अलग है, लेकिन माँ बोलती है कि ये वही बच्चा है। क्यों? अपनी पहचान बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान वो आत्मा की वजह से, जीव की वजह से है। बच्चों, आज की सिलेबस में, आज की अपने जो कुछ है एजुकेशन सिस्टम में, ये जो बेसिक चीज़ है मिसिंग है कि जीवन जो है आत्मा की वजह से है। मेडिकल साइंस जो बोलते हैं, पढ़ते हैं बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस बायोलॉजी में केवल बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, और बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, बस उसका ही स्टडी है। बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सीखते हैं। लेकिन इस बॉडी में, जीवन में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और सबसे ऊपर जीव आत्मा है, इसका उल्लेख भी नहीं है। तो बच्चों, इसलिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बस हम जो है बॉडी है, बॉडी का सुख अपना सुख है, और फिर हम दुखी होते हैं। क्यों? बॉडी हमें सुख देता नहीं है, नहीं देता है। अब बैठे बैठे आपको तकलीफ होगा, आपको बोलेंगे खड़े हो जाओ, तो खड़े खड़े तकलीफ होता है, सो जाओ, उसमें भी तकलीफ होता है। इस बॉडी का ऐसा कोई स्थिति नहीं है जो हमेशा हमें सुख दे सके। लेकिन बच्चों, जब हम जानेंगे कि जीवन एक अपना सुंदर यात्रा है, ध्यान दीजिए, बस थोड़ा अंतिम समय है, आई विल एंड इन टाइम, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं इतने दूर से आया हूँ, आपको अपना मानता हूँ इसलिए आया हूँ। जो हमने जीवन का सुख पाया है, समाधान पाया है, हम देना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो कहा, हम मानते हैं कि सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं, और हम सबको अपना मानते हैं, सबको अपनी सेवा देना चाहते हैं। और जो हमें नवोदय ने सिखाया, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। हम 8 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, मैकेनिकल साइंस पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा है, मशीन डिज़ाइन पढ़ा है, लेकिन जब हमने सुना, समझा कि वो तो ठीक है मशीन का ज्ञान, लेकिन जीवन का ज्ञान यदि हम नहीं देंगे तो लोगों का जीवन सुखी कैसे हो सकता है। तो हमने जब देखा अभी हमें जॉब की आवश्यकता नहीं है, तो हमने जॉब छोड़कर पूर्ण समय अपना पिछले 12 साल से हम लोग सेवा में लगे हैं कि जीवन का विज्ञान स्कूल कॉलेज में, समाज में दिया जाए। क्यों? यही एक समय होता है जहाँ पे ज्ञान लिया जा सकता है। जो बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं भी हमको सब पता है, वो नया कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ये इच्छा होती है कुछ अच्छा ज्ञान लेने की। तो हम सोचते हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए कम से कम जीवन में एक बार ये बताया जाए कि हम कौन हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें अपने जीवन की दिशा, अपने जीवन का समाधान नहीं मिलने वाला है। आप बनिए, जो बनना है बनिए, हम भी बने इंजीनियर, हम भी बने प्रोफेसर, हम भी बने एक अपने इस्कॉन में ब्रह्मचारी, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उससे समाधान पाना चाहिए। जब और वो मिलेगा जब हमें आत्मज्ञान होगा। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जीवन को समझने के लिए कि जीवन अपना एक सुंदर यात्रा है। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी विच बिगैन एट वन पॉइंट विच हैज़ टू एंड वन पॉइंट। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। जिसका बुद्धि कम है वो ये भूल जाता है हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है, तो भटक जाता है। वो केवल दूसरों को देखता है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, और वैसे ही फिर भेड़ बकरी जैसा जीवन जीते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं लेते हैं। कि हमें समझना चाहिए कि वास्तविक तभी तो जीवन में दिशा आएगी। जो बोलते हैं वी शुड हैव द राइट डायरेक्शन इन लाइफ। जीवन में सही दिशा चाहिए। तो सही दिशा कहाँ से आएगी? सही दिशा एक ही है,
दिशाएं अनेक है। आप जिस रास्ते से निकल जाओ वो भी एक दिशा बन जाती है, लेकिन बच्चों सही दिशा एक ही है जो हम जहाँ से आए हैं वहाँ ले जाए। जैसे आपके माता पिता जो हैं चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा बनकर वापिस कहाँ आए, अपने घर आए, हमारे पास आए। यदि बच्चे यहाँ पे आए स्कूल में, बाद में उनके पास गए ही नहीं, तो माता पिता दुखी होंगे कि हमने किसके लिए भेजा था, केवल फिजिक्स सीखने के लिए? नहीं, फिजिक्स सीखने के बाद, जो भी पढ़ाई करने के बाद बच्चे अपने बने, बच्चे हमारा सुने, बच्चे हमारे साथ रहें, ये माता पिता का विचार होता है। वैसे ही बच्चों जीवन के विषय में हमें ये पता होगा कि सही दिशा वो है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाना चाहिए। बच्चों जैसे आपके घर में जाने के लिए हमें दुख नहीं होता है, आनंद होता है, वैसे ही जब पता होगा हम कहाँ से आए हैं तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं होगा। मैं जो बोल रहा था, जीवन एक सुंदर यात्रा है। आप देखिए, यस प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा समय, कि कोई भी यात्रा में जर्नी में हमें व्हीकल चाहिए, व्हीकल। तो बॉडी इज अ व्हीकल, a physical body is a vehicle. Someone has human body, someone has animal body, someone has plant body, someone has insect body. And you may be shocked, you may be surprised to know that our Vedic science has given exact count of the species of life. इस ब्रह्मांड में ये जीव है उनकी संख्या कितनी है, उनके प्रकार कितने हैं। अपना मॉडर्न बायोलॉजी ये काउंट नहीं दे सकता कि कितने प्रकार के जीव होते हैं। पानी में कितने होते हैं, हवा में कितने जीव होते हैं, ज़मीन में कितने जीव होते हैं, और जीवन केवल पृथ्वी पे है या पूरे ब्रह्मांड में जीवन है, ये मॉडर्न साइंस का क्षमता नहीं है जो बता सके। क्यों? मॉडर्न साइंस केवल आँखों पे विश्वास करता है। हम देखेंगे, अपने मन से कल्पना करेंगे, तभी हम मानेंगे। बच्चों, ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो अपने आँखों से समझ देख नहीं सकते। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक जो अपना मूल विज्ञान जो है उसका बेस वैदिक साइंस है। ये जो शब्द है ना प्रज्ञानम ब्रह्म, ये दो शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये उपनिषद से लिए गए हैं कि सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जिससे हमें आत्मज्ञान हो सकता है कि हम वास्तविक कौन हैं। जब अपना समय सुख मिलेगा, आत्मसुख, आत्मसमाधान, तो फिर हम किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। We don't depend on anything of this world to be happy. When we know that our nature is Satchidananda. Satchidananda means, Sat means eternal, all time existing. Body will not exist for all time. But we as a soul, immortal, eternal soul, always exist. Soul is by nature knowledgeable. Body is full of ignorance. बॉडी अज्ञान में है। अपने पेट में क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, हेडेक क्यों है, बॉडी पेन क्यों है, हमें समझ में नहीं आता है। तो बॉडी इज इग्नोरेंट, बट सोल इज कॉग्निजेंट, सोल इज कॉन्शियस, सोल इज नॉलेजेबल। लास्ट पॉइंट, सोल इज आनंदमय, ब्लिसफुल। बाय नेचर वी ऑल आर फुल ऑफ ब्लिस, आनंदमय है। जब हम जानेंगे कि अपनी पहचान हड्डी मांस का गाड़ी नहीं है, अपनी पहचान शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा है, जीव है, जो नित्य है, अविनाशी है, जो भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। कि आत्मा का कोई अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है। तो हम जानेंगे कि अपना वास्तविक पहचान जो है वो आत्मा का है। तो मुझे एग्जांपल दिया जाता कि बॉडी अपनी गाड़ी है,
और जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण, उसमें काउंट दिया गया है कि उसमें श्लोक में किताब में दिया हूँ कि जो पद्म पुराण में है कि पानी में जो है जलजा नवलक्षाणी, कि पानी में जो जीव होते हैं 9 लाख होते हैं। पानी के जीव जो है एक्वेटिक्स 9 लाख, जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स 10 लाख होते हैं, 10 लाख। जो कीटक होते हैं इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स वो होते हैं 11 लाख 11 लाख। जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम, प्लांट स्पीशीज, वो होता है 20 लाख 20 लाख। जो पशु है, पालतू पशु, जंगली पशु एनिमल्स किंगडम, वो है एनिमल बेस्ड 30 लाख। जो मनुष्य है 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। और जीवन जो है बच्चों केवल पृथ्वी पे नहीं है, जीवन इस ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, स्टार्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब जगह जीवन की व्यवस्था है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से, ये जो वैदिक साइंस है, जो कौन दिया है, जिसने दुनिया बनाई है। आप बोलेंगे किसने देखा, ये देखने की चीज़ नहीं है। जैसे महात्मा गांधी को किसने देखा है, लोगों ने देखा है जो उस समय थे, हम नहीं देख सकते, हम केवल फ़ोटो देख सकते हैं, अगर वीडियो होगा तो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन वैसे ही बच्चों, जब दुनिया बनी तो भगवान ने इस दुनिया के साथ साथ मैनुअल भी दिया, इंस्ट्रक्शन गाइड भी दिया। जैसे आप देखिए, कोई कंपनी जो है, कोई मोबाइल बनाती है, कोई मशीन बनाती है, तो साथ में एक पुस्तिका देती है, क्या बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं, यूज़र गाइड। तो वैसे ही जब भगवान ने दुनिया बनाई, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो दुनिया बनाया, तो साथ में वैदिक साइंस दिया है। बच्चों, अभी यहाँ पे आपने स्कूल में सब जगह पेंटिंग लगाते हैं, बच्चों जो पेंटिंग बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, उनके नाम लिखते हैं, कौन से क्लास का बच्चा है, और वो भी ऐसा नहीं कोई भी बनाए तो लगा दिया। टीचर्स देखते हैं कौन सा अच्छा पेंटिंग है, उसको लगाते हैं। और कोई पूछे उनको, सर ये पेंटिंग कौन बनाया है, ये कोई बनाता नहीं, यहाँ पे ऐसे ही जो पेंट होता है, कलर्स होता है, ऐसे कागज़ उड़ के आता है और सब अपने आप बन जाता है, और जैसे अपने आप वो जो है शोकेस उसमें लग जाता है। कोई ऐसा बताए तो बोलेंगे पागल है क्या, मैं समाज ऐसा बोलते हो कि कोई तो बनाया होगा। क्योंकि बनाने के लिए, पेंटिंग के लिए बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्षमता चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। तो बच्चों वैसे ही एक सारा कागज़ का पेंटिंग बनाने के लिए बुद्धि, क्षमता, व्यक्ति चाहिए। तो इतना सुंदर विशाल अनंत जो विश्व है, ये बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए। दुनिया में प्रत्येक वस्तु का मालिक है। ये गाड़ी किसकी है, इसकी है, ये घर किसका, इसका है, ज़मीन किसकी, इसकी है, और दुनिया किसकी है, उसका कोई मालिक नहीं। ये तो गलत है बोलना। तो बच्चों, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम जो है, मैंने जो कहा, नित्य आत्मा है, जीव है, जो जन्म लिए है, वो भगवान के अंश है, अपना संबंध है। तभी तो गाते हैं नवोदय में प्रेयर, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। देखिए, यदि किसी का माता पिता भगवान हो, भगवान किसी का माता पिता हो, उससे कुछ कमी नहीं हो सकती है। हम जब गाते हैं ये मानते नहीं हैं कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो हम कभी सब पूजा होती है तो बाद में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सत्य है कि जब हम जानेंगे दुनिया का जो माता पिता है वो अपना भी है, और केवल ऐसा नहीं कि भगवान भी अपने धाम में केवल माँ तो है ही, लेकिन हम सबके साथ ही, हम सबके साथ भी होते हैं, आत्मा के साथ। कौन से रूप में होते भगवान? परमात्मा के रूप में। तभी तो कहते हैं तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, कोई ना अपना सिवा। बच्चों, अपनी मन की क्षमता, अपनी बुद्धि की क्षमता अपनी बस की बात नहीं है। जब तक भगवान हमें शक्ति नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाता। हम चाहते हैं मन लगे, बुद्धि का विकास हो, बुद्धि अच्छी चले, लेकिन नहीं हो पाता है।
क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भगवान से शक्ति लेने नहीं आती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता हमें क्यों लेने नहीं आती है? क्योंकि हम सोचते हैं अपना कोई संबंध है नहीं भगवान से, हमें कोई भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान है ही दुनिया में। जब ऐसा मानते हैं, ऐसा जब नास्तिकवाद जब होता है तो हम भगवान से ले नहीं पाते हैं। भगवान देना चाहते हैं लेकिन हम ले नहीं पाते। तो बच्चों, मुझे एग्जांपल दिया कि लाइफ इज जर्नी, जर्नी नीड्स व्हीकल, वी हैव अ ह्यूमन बॉडी और वी हैव सेंसेस। गाड़ी दौड़ती है किस पे? चक्कों पे, पहियों पे, व्हील्स पे। अपनी गाड़ी दौड़ती है सेंसेस के ऊपर। वी हैव 10 सेंसेस, 5 फॉर नॉलेज, 5 फॉर वर्किंग। ज्ञानेंद्रिया 5 है, कर्मेंद्रिया 5 है। आप देखिए, कोई गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए, कोई भी गाड़ी में क्या होना चाहिए? ब्रेक। बिना ब्रेक का हम साइकिल भी नहीं चलाते हैं। तो वैसे ही बच्चों, अपने जीवन की गाड़ी के लिए मन जो है अपना ब्रेक है। अब ब्रेक कहाँ लगता है? व्हील्स के ऊपर। तो अपना जो मन का ब्रेक है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ब्रेक लगेगा कहाँ पे? सेंसेस के ऊपर। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ब्रेक कौन लगाएगा? गाड़ी में ब्रेक अपने आप नहीं लगता है। गाड़ी में ब्रेक कौन लगाता है? ड्राइवर लगाता है। तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, जो ड्राइवर अशक्त है, कमज़ोर है, उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है, खड्डे में जाती है, बहुत समय गड्ढे में जाती है। तो बच्चों, अपनी बुद्धि जो है अपना क्या है? चालक, ड्राइवर। वो ब्रेक लगाएगा कहाँ पे? वो मन का ब्रेक लगाएगा कहाँ पर? अपनी इंद्रियों पर। संयम, कि हमें संयम होना चाहिए। जिसके जीवन में संयम नहीं है, संयम, वो फिर बेकाबू होता है और फिर वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अंतिम बात कि मैं तो बता दिया, बॉडी अपनी गाड़ी है, जीवन एक सुंदर यात्रा है, प्रवास है। इंद्रियां अपनी क्या है? व्हील्स। मन क्या है अपना? ब्रेक। बुद्धि क्या है? बुद्धि अपना ड्राइवर। हम कौन है? जीवन की यात्रा में हम जो है पैसेंजर है या यात्री है, सवारी है ना, यात्री बोलते हैं, यात्री। हम सवारी है जो निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? हम भगवान के धाम से निकले हैं, हम भगवान से आए हैं। तो ये हमें पता होगा। जैसे हम अपने गांव से आए, माता पिता के घर से आए स्कूल में, और वैसे ही हमें वेकेशन में अपने माता पिता के यहाँ जाने में दुख नहीं होता, आनंद होता। वैसे ही बच्चों से हम जाने कि दुनिया जो है, हम जो है भगवान का है, तभी हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। और जो संबंध जोड़ेगा उस व्यक्ति का मन जो है शांत होगा। जैसे कोई बच्चा जो है, छोटा बच्चा माँ के साथ होता है तो फिर वो शांत होता है। जैसे उसकी माँ से वो अलग होता है बच्चा, छोटा बच्चा, वो फिर चिंता में आता, भय, उसे भय होता है, डर लगता है। तो वैसे ही बच्चों, हमने जीवन का समाधान पाया है ये समझकर कि हम सभी भगवान के हैं। जब हम मानते हैं सभी भगवान के हैं तो हम सबको अपना मानते हैं। जो बोलते हैं कंसेप्ट वसुदैव कुटुंबकम, ये बोलने की बात नहीं है। जिस व्यक्ति को भगवान का ज्ञान है वो जानता है कि कुटुंब फैमिली कैसे बना। क्योंकि फैमिली का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द फैमिली इज वन सुप्रीम लॉर्ड। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, उनकी शक्तियाँ अनंत है। आप जिसको भी मानें, हमें मानना चाहिए कि एक सुप्रीम पावर है, ये कोई सर्वशक्तिमान भगवान है, जिससे हमें अपना संबंध जोड़ना चाहिए। बच्चों, फिर आपकी पढ़ाई जो है अच्छी हो सकती है। क्यों? आपका मन शांत होगा, आपकी बुद्धि जो है तेज होगी, आपका मन भटकेगा नहीं। आज जो मन भटकता है सब जगह, गलत जगह पर। क्यों भटकता है? क्योंकि हमें सुख चाहिए और हम सुख के लिए बहुत समय गलत काम भी करते हैं और ये दुख पाते हैं। लेकिन बच्चों, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, हमें अनंत सुख,
समाधान की अनुभूति होती है, हमने पाई है। तो हम अकेले नहीं हैं, इस दुनिया में अनादिकाल से असंख्य लोगों ने भगवान से अपना संबंध जोड़कर जीवन का समाधान पाया है, सुख पाया है। और जो बंगाल जो भूमि है चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। जब 538 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो है, जो नवद्वीप का जो मायापुर स्थान है, वहाँ जन्म लिए थे। और चैतन्य महाप्रभु का आज जो संकीर्तन है या जो उनका महिमा है पूरे विश्व में आज लोग जानते हैं। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, यदि आप जानें कि जो बंगाल का जो महान महिमा है, ये कल्चर, भक्ति और सेवा, ज्ञान, इसके लिए अलग वजह से है। तो बंगाल भूमि बहुत पवित्र है, बहुत महान है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, समाज सेवकों ने, संत महात्माओं ने, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, या बहुत लोग हैं, नेताजी बोस हो, इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए लगाया है, दूसरों की सेवा के लिए। तो हमें इन सभी से अच्छी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। और जो आपने मुझे यहाँ पर थोड़ा समय देकर एक सेवा का मौका दिया, तो मैं आप सबका धन्यवाद मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ कि आपका जीवन महान बने और सफल बने। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो अपने विद्यालय की मैडम हैं, प्रिंसिपल मैडम, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, प्रेम से हमें यहाँ का आज का एक दिन का हमें निवास दिया है, आश्रय दिया है। हम उनका भी कृतज्ञ हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं। और सभी शिक्षक जिन्होंने हमें व्यवस्था बना के दिया आज एक सेवा के लिए। बच्चों, ये मोटिवेशन होगा कि हमें कुछ सेवा करनी है, तो आपकी बुद्धि के लिए एक अच्छा उत्तेजन मिलता है, इम्पेटस, उत्तेजन मिलता है। नहीं तो बस केवल पैसा कमाना है, बड़ा पैकेज चाहिए, इसमें बुद्धि धोखा खाती है। क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है सेवा करना है। क्योंकि सेवा करने से हमें जो समाधान आनंद मिलता है वो अनंत होता है, उसकी सीमा नहीं होती है। तभी हमें वो उत्साह आता है और फिर महान प्रेरणा आती है कि हमने पाया है। हमें ना कोई पैसा कमाना है कहाँ पे, ना हमें कोई बड़ा बनना है। हम जो भी है वहाँ पर सेवा करनी है, इसलिए हम जीवन का समाधान पाए हैं। तो समिति ने पहले ही बोला है, कम टू लर्न, गो टू सर्व। यदि हमें मोटिवेशन होगा तो बच्चों विश्वास कीजिए, अंक मिले ना मिले, क्योंकि सबको 90+ तो मिलने वाला नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है खेल कूद में आगे जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स, जो अपना म्यूज़िक है उसमें आगे जाएंगे, कुछ बच्चे जो है आर्ट्स में आगे जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं मेडिकल में आगे जाएंगे, कुछ लोग टेक्निकल साइंस में आगे जाएंगे, कुछ लोग सोशल साइंस में आगे जाएंगे और कुछ लोग जो है अध्यात्म में आगे जाएंगे। सबकी आवश्यकता है, सबको एक जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका अपने एक विशेष गुण है, एक विशेष योग्यता है, प्रतिभा है, उसको समझना है और उसको सेवा में लगाना है। तो हमने वही करने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूँ जो मैं किताब लिखा हूँ जिसमें नवोदय का अनुभव है और जो हमने वैदिक साइंस से जो ज्ञान पाया, अनुभव पाया, उसमें भी हम लोग फिलॉसफी जीवन का हमने इसमें दिया है। ये बात 2 भाषाओं में मैंने लिखा हूँ, हिंदी, इंग्लिश। तो मैं अपनी ओर से इस स्कूल को, जितने भी अपने हाउस है बच्चों को, मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो अपने हाउस कैप्टन्स है, जो अपने हाउस है हाउस कैप्टन्स, उनको मैं एक ही किताब जो है दूंगा। तो सर कहेंगे कि यहाँ दे सकते हैं, सर अभी दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, बाद में देंगे, ठीक है। तो मैं जो किताबें हैं सर के पास दे दूँगा। सर आपको कैप्टन को जो है, हाउस कैप्टन को एक जो हाउस लाइब्रेरी होती है उसके लिए किताब देंगे, ताकि आप अपने समय में भी पढ़ सकते, देख सकते। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, और किसी का कोई सवाल होगा, किसी के मन में कोई जिज्ञासा होगी, तो मैं कल दोपहर तक कैंपस में हूँ, मुझे आप मिल सकते हैं। थैंक यू। महाराज
तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप बांग्लादेश समझते हैं? বাংলায় বলি না, কেননা আমাদের বাংলা বলছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম লাইফ স্কিল সম্পর্কে তুমি যেভাবে সুন্দর বাংলার সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের বোধ শক্তির মধ্যে যে প্রবেশ করছে তা নয়, মানে বুদ্ধি স্তরে যে আছে তা নয়, আমার ধারণা, আমার বিশ্বাস বিষয়টা অনুভবের স্তরে পৌঁছেছে। কেননা খুব সুন্দর সহজ উদাহরণ দিয়ে জীবনের যে কঠিন সমাধান তার উপায় বাড়িয়ে দিয়েছেন। উপনিষদের মূল তত্ত্ব থেকে শুরু করে গীতার তত্ত্ব খুব সহজভাবে আমাদের বাস্তবিক জীবনে কেমন ভাবে তা পালন করলে আমাদের এই ক্ষুদ্রতাকে, এই তুচ্ছতাকে আমরা অতিক্রম করতে পারবো তার বাস্তব উদাহরণ সহ তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর জন্য আমরা সবাই গভীরভাবে কাজ করি। আমরা সবাই আশা করব যে তার কথা মতো, তার উপদেশ মতো, সবচেয়ে বড় কথা তার অভিজ্ঞতার প্রসূত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা আমরা অনুসরণ করব। তিনি বলেছেন, তিনি একটা আহ্বান করেছেন, আমাদের দুটো জগৎ, একটা বাস্তব, একটা অপার্থিব, অর্থাৎ স্পিরিচুয়াল। আমরা এই বাস্তব জগতে থেকেও সেই অপার্থিব আধ্যাত্মিক জগতের আনন্দ নিতে পারি, তা নিশ্চয় করে দিয়েছেন। এটা সব সাবজেক্টিভ আছে। ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে আমার যেমন অনুভব মনে হয়, যেটা একটা উপনিষদের মন্ত্র আছে, ওটা কোন মোটামুটি যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি বললাম যে আমাদের চোখ ঢোকা যায়, চোখে ঢুকতে পারি না, সেই পরমেশ্বর পূর্ণ, সর্বগত পূর্ণ, এবং এই যাওয়াটা যে বিশ্ব জগৎ, এটাও পূর্ণ, অস্বীকার করা যায় না। কেন না, সেই পূর্ণ থেকেই এই পূর্ণ উৎপত্তি, সুতরাং এটাও পূর্ণ। পূর্ণ থেকে যদি কিছু সরিয়ে নেওয়া যায়, যা অবশিষ্ট থাকে তাও পূর্ণ। অদ্ভুত, অসাধারণ অনেক বছর মন্ত্র, যেটা বাস্তবে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। আমরা ম্যাথমেটিক্সে ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি কি লিখি? ক্লাস 11 ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি কি লিখি? ইনফিনিটি লিখি। পূর্ণ থেকে পূর্ণ সরিয়ে দাও, যা থাকে তাও পূর্ণ। শুধু আমাদের উনি বলছেন না, শুধু মুখে বললে হবে না, পালন করতে হবে, মানতে হবে, বোধ আনতে হবে, ধারণা করতে হবে। এই ধারণাটুকু যদি আমাদের আস্তে আস্তে তৈরি করতে পারি আমরা অভ্যেসের মাধ্যমে, তাহলে আর আমাদের দুঃখ কষ্ট, যারা যন্ত্রণা, তারা থাকবে কিন্তু অনুভব করবো না। দুঃখ থাকবে, দুঃখ আমাদের নষ্ট দিতে পারবে না, কষ্ট থাকবে, কষ্ট আমাদের কাটাতে পারবে না। যেরকম বললেন, অস্ত্র ছেদন করতে পারে না, জল শুষ্ক করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না বা ভেজাতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না। সেটা হচ্ছে সেই আত্মা। আমরা সেই আত্মার সাথে ধীরে ধীরে মেলবন্ধন করতে চেষ্টা করবো। মহারাজের কাছে আমরা প্রার্থনা করবো, পরমেশ্বর আমাদের সেই বুদ্ধি সকলের মঙ্গল শুভ সন্ধ্যা।